Hello guys, welcome to Free Shiksha. Today we are going to talk about stoichiometry. It is uh, it is going to have problems very much similar to the mole concept problems, and a little advanced version of it. And let's get started. So first of all, how do you define stoichiometry? So to know that, we need to know what is a balanced chemical equation. So here what is happening is nitrogen is reacting with hydrogen and giving us NH3, that is ammonia. But if you can see, there are two atoms of nitrogen, that is one molecule, and two atoms of hydrogen in the reactant side, and in the product side you get one atom of nitrogen and three atoms of hydrogen. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के दो एटम्स हैं, हाइड्रोजन के भी दो एटम्स हैं रिएक्टेंट्स में, लेकिन प्रोडक्ट्स में नाइट्रोजन का एक एटम है और हाइड्रोजन के तीन एटम। तो ये कुछ बैलेंस नहीं हुआ। तो बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी हाइड्रोजन के तीन मॉलिक्यूल जब मिलेंगे दैट विल मेक इट 2 हाइड्रोजन एटम्स, एंड what we need to do is we need to multiply this with 2. Now if you count, you will see that नाइट्रोजन के भी दो एटम्स हैं और हाइड्रोजन के 6 एटम्स। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में दोनों में बराबर एटम्स, तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। पहली इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। इसी तरह से हम एक और इक्वेशन लेते हैं जहाँ Fe2O3 प्लस Al gives you Al2O3 plus Fe. Now if you see, barium, that is iron, will have two atoms here, but in the product it is just one. And similarly aluminium has one atom in the reactants, whereas in product it is two. So if you multiply both sides, as in sorry, not both sides, but iron with 2 and aluminium with 2, you get the equation as balanced. Here is the balanced equation: 2 atoms of aluminium in the reactants, 2 in the products, and similarly 2 atoms of iron in the reactants and 2 atoms of iron in the products. Oxygen was already balanced because there were 3 atoms of oxygen in the reactants and 3 atoms of oxygen in the products. Okay, now we are going to do a numerical. We are taking the same equation, Fe2O3 plus 2Al. Yeah, so stoichiometry basically is you can say a branch of chemistry which deals with the calculation of as in reaction between the products, between the reactants and the products. So in what ratio, in what quantity they are going to react, and in what quantity the products are going to generate. This is what stoichiometry basically talks about. So here we can see that one atom of Fe2O3 reacting with two atoms of Al2O3 is equivalent to 1 mole of Fe2O3 reacting with 2 mole of Al2O3. Have you understood this concept? अगर आपको समझ नहीं आया तो आप जाके मोल कॉन्सेप्ट की वीडियो देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एक एटम और एक मोल, मतलब एक मोल क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर एक होता है। तो अगर हम एक एटम को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे भी दो एटम को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतने, दैट मीन्स अगर एक एटम दो एटम से रिएक्ट करता है तो हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक मोल 2 मोल से रिएक्ट करता है, और उसमें 1 मोल Al2O3 क्रिएट होता है और 2 मोल आयरन क्रिएट होता है। ठीक है। अब अगर हम आपको कह दें कि अगर 80 ग्राम्स ऑफ Fe2O3 रिएक्ट कर रहा है तो वो कितने एल्यूमिनियम से रिएक्ट करे कि वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाए, तो ये हमारी प्रॉब्लम है आज की। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें 1 मोल में ग्राम्स निकालने पड़ेंगे Fe2O3 के। तो 1 मोल में कितने ग्राम्स होते हैं Fe2O3? एटॉमिक मास ऑफ Fe2O3 विल बी 160। हाउ? Fe का जो एटॉमिक मास है वो है 56। अगर आपको याद है, या फिर या तो ये प्रॉब्लम में दिया हुआ होगा, याद तो नहीं रख सकते आप, खैर ये प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ होगा Fe2O3 का मतलब
एटॉमिक मास क्या होगा, Fe का क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, फिर आपको ऐड करना होगा। ऑक्सीजन का जहाँ तक मुझे याद है 16 होता है, तो 16 इंटू 3 आपका 48 हो गया, और Fe का 56 होता है, तो 112 प्लस 48 गिव्स यू 160 ग्राम्स। यूनिट लिखना नहीं भूलना चाहिए मैंने भी गलती की है यहाँ, क्योंकि CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स में मार्क्स काट लिए जाते हैं ऐसे छोटे मिस्टेक्स के लिए भी। ओके, एनीवेज, तो 160 ग्राम में 1 मोल Fe2O3 होता है, ये तो हमें पता ही है। एटॉमिक मास निकाल दो। एक बारी प्लीज़ आप मोल कॉन्सेप्ट की वीडियो रेफ़र कर लीजिएगा इफ़ यू आर फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। तो अगर हम 80 ग्राम्स कह रहे हैं, 80 ग्राम, 1 मोल में 160 ग्राम्स है, तो 80 ग्राम्स में कितने मोल हुए, 0.5 और हाफ, राइट, कैन से इट 0.5 और हाफ। ओके, सो इफ़ यू मूव फॉरवर्ड व्हाट वी सी इज़ हेंस द अमाउंट ऑफ, अच्छा Al2 जो है 2 मोल लग रहे हैं। अगर आधा मोल Fe2O3 का लगेगा तो एल्यूमिनियम का कितना मोल लगेगा, 1 मोल लगेगा, राइट, ठीक है। हेंस ये आप काट दीजिए, ये गलती की है मैंने यहाँ, sorry for this. So the amount of aluminium required is going to be how much, 1 mole, 1 m, right, and 1 mole का जो आपका weight होता है that is equal to 27. Please don't look at this thing, this I have done a mistake here, so don't think about it. Only thing is the amount of aluminium will be required will be equal to 1 mole, क्योंकि 0.5 मोल्स अगर Fe2O3 है तो 1 मोल एल्यूमिनियम का रिएक्ट करेगा। तो 1 मोल अगर एल्यूमिनियम का रिएक्ट करेगा तो 1 मोल में का एटॉमिक मास क्या होता है एल्यूमिनियम का, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। और एल्यूमिनियम का 1 मोल का एटॉमिक मास है 27 ग्राम्स जी, डोंट फॉरगेट टू राइट दैट। ओके, तो आज के लिए इतना ही।